गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। बाकी जनता कहाँ है? गुड मॉर्निंग मैम। तो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाकी जनता कहाँ है? मैम पता नहीं। सो रही है? शायद लॉगिन कर रहे होंगे। सारे लॉग इन करो तो चलो 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं सबके लिए, ठीक है? यस मैम। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? जनता आ चुकी है? स्टार्ट करें बेटा? यस मैम। चलो, तो कहां तक पढ़ लिया था हमने? फजांस रूल कर लिया था क्या? नो मैम। फजांस रूल नहीं किया था? अरे चिरकुट बालक, कल नहीं किया था? मैम नहीं किया। हाइपोवैलेंट और नहीं हाइपरवैलेंट की कंपाउंड बताया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, फॉर्मल सॉरी, चार्ज। फजांस रूल नहीं किया था, फॉर्मल चार्ज कर लिया था। चलो ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ फजांस रूल। ओके, what is Fajans rule? Like you have already you got to know about covalent compounds. You know what are ionic compounds? Ionic compounds have complete transfer of electrons. Yes or no? So, but what did Fajan say? That you are saying that electrons are either shared or either transferred, but it is not always 100%. He says no compound can be 100% ionic or 100% covalent. Fine. It will have
It may have predominant ionic character or covalent character. It may have predominant ionic or covalent character. Fine. So this is known as Fajan's rule. And how did it explain that? How can we define that it will have predominant ionic character or covalent character? He said that it depends upon polarization of cation and polarizability of anion. Fine. So what did he say? Fajan's rule states that a covalent compound will have high polarizing power of cation and high polarizability of anion. Understood? Understood, beta? Now what is polarized? HCl है जैसे मैम उसमें ना Cl माइनस का जो आयन है वो H प्लस का इलेक्ट्रॉन क्लब को अपने तरफ खींचेगा वो तो खींचेगा ही, लेकिन I am saying that this Fajan's rule is saying that when you have to say covalent character more, covalent character will be more if polarizing power of cation is more and polarizability of anion is more. Now what is polarizing power? Polarizing power. Polarizing power is directly proportional to charge and inversely proportional to size. Basically, it is the power to polarize the other atom. See, if there is a say any charged particle and there is another rod, if I want to create plus this side and minus this side, do I need the strong polarizing power or a weak one? Or suppose there is a magnet. Magnet has north pole this side, south pole this side. Now we have another particle, a rod of iron. Then it will have south pole this side and north pole this side. It will get polarized only and only if there are more power of polarizing. Yes or no? Yes, ma'am. Any doubt? Hemanjani, beta, please switch on your mic. Just refresh and choose for mic option and not earphone option. Okay, Hemanjani? Okay. So, this was about polarizing power. So, can I say that if this charge will be more,
the power to create will be more. Yes or no? Yes, ma'am. And if size is more, then power to attract Yes. will be less because electron affinity is also less. Yes or no? Yes, ma'am. So if I say, and you must have heard in S block, hey Manjini, can you listen me? Beta, please refresh. Are you comfortable in both English and Hindi or just English? Okay, fine. तो तुमने एस ब्लॉक में देखा होगा, एस ब्लॉक में ये पढ़ा जाता था कि लिथियम तुम लोगों ने एस ब्लॉक में देखा होगा कि लिथियम क्लोराइड का जो कोवेलेंट नेचर होता है और बाकी NaCl और इन सब का आयनिक नेचर होता है. यस और नो? पढ़ा है इस ब्लॉक में? अगर याद नहीं है तो भी अब देखो, हम ऐसा सोचते हैं कि इनऑर्गेनिक में सब एक्सेप्शंस है, बट देयर इज एन एक्सप्लेनेशन टू एवरीथिंग. अगर तुम ये छोटे छोटे रूल्स याद कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो तुम्हें कोई भी एक्सेप्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है बेटा? ठीक है? अरे हाँ या ना तो बोल दो. निकिता बेटा, व्हाई आर यू लेट? यस मैम. ठीक है, तो ये तो हो गई पोलराइजिंग पावर. अब बताओ, अगर मैं लिखूं Li प्लस Na प्लस K प्लस, पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? ऐसा होगा. यस मैम. अब वहीं पर अगर मैं लेती Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3, अब ऑर्डर कैसा होता? उल्टा हो जाएगा. यस मैम. क्योंकि Al प्लस 3 पर चार्ज ज्यादा है, तो ये ज्यादा पावर से पोलराइज करेगा. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और चार्ज ज्यादा होना चाहिए. इसके बाद हम आते हैं एनायन पे. जस्ट 1 सेकेंड. You are now muted. You are now unmuted. ओके, तो अब नाउ वी विल टॉक अबाउट पोलराइजेशन
पावर, सॉरी पोलराइजेबिलिटी, वो खुद भी पोलराइज होना चाहता है या नहीं चाहता है, ये भी तो देखना पड़ेगा. तो वी विल टॉक अबाउट पोलराइजेबिलिटी. कैन आई से इफ साइज ऑफ anion is more, polarizability is more. So for example, I minus Cl minus B, then we have Br minus F minus, which will have more polarizability? I minus. Least polarizability? F minus. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. You are now unmuted. Okay. Wish you a very happy Basant Panchami. May you succeed in your life and Goddess Saraswati give you all the knowledge you actually deserve to receive. And you be a doctor. Okay? हो गया बेटा? जल्दी जल्दी करो, देखते हैं कितने बच्चों को आंसर सही आते हैं. हो गया दीपक?
अरे बोल तो दो यार. मैम कर रहे हैं अभी. करो करो. You are now muted. You are now unmuted. हो गया. हो गया.
Do till 68. 68 तक कर लो तो बता देना. दीपक कहाँ तक हो गया? मैम 65. अच्छा. हो गया ये? प्रीतम बेटा कहाँ तक हो गया? मैम लास्ट कॉलम 68. ठीक है. हेमंजनी बेटा till where have you done? Till which question? Hemanjani, you can unmute your mic and speak to me if you want. $65. Okay, please complete fast. निकिता कहाँ तक हो गया बेटा? Ma'am, 66th is running. ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो. Okay, Hemanjani, no issues. Tell me when you have completed. डन? कर लिया सभी बच्चों ने? चलो डिस्कस कर लेते हैं. Yes, ma'am. Question number 58. The correct answer is Ma'am, option C. option number C. Yes, ma'am. ऑप्शन नंबर सी. और किसी का कुछ और आ रहा है? नो मैम सी. सी ही आएगा पक्का? यस मैम. ठीक है. किसी को कोई डाउट? हेमंजनी, एनी डाउट? नो मैम.
Correct order of covalent character of alkaline. Why? Because of size. Question number 59. Which of the following is least soluble in water? We know that ionic compounds are soluble in water or they are not soluble in water. It depends upon lattice energy. So, more the covalent nature, less will be the solubility. And which will have more covalent nature? Tell me. Ag is same Mag. all over there. I MAGI. will have maximum polarizability. So, AgI will have maximum covalent character. मैम इसका एक्सप्लेनेशन एक बार बोल देंगे? एक second. See, if we are going for least soluble in water, least soluble means the compound needs to be more towards covalent side. Yes or no? Covalent compounds are not soluble in water. So can I say that more the covalent nature, more will be, least will be the solubility. Now Ag plus cation is same in all of them. Now we will look towards an ion. Fluorine will have less polarizability and I minus will have more polarizability. So can I say that polarizability of I minus is more? So more covalent character will be for AgI and thus least solubility. Understood? Yes मैम. Yes, Any ma'am. doubt? Okay. Which pair in the following has maximum and minimum ionic character respectively? Maximum ionic character and minimum. See, if I talk about maximum, then if we need to go for see, maximum ionic means we need to go for least covalent character, and least covalent is for larger size of cation. Yes or no? Since all over there it is Cl minus only. So larger size of cation is RbCl or AgCl. RbCl or AgCl, we can go for any. But minimum ionic character, that is maximum covalent character, we need to have small size of cation. We Ma'am, have option B. option B. B. Question number 61. The melting point of SnCl4 is less than that of SnCl2. The suitable reason for the following fact is melting point of SnCl4 is less than SnCl2. Can anybody tell me why it is so? Because Sn plus 4 has high polarizing power, so it will have high covalent character. And you know that ionic compounds have very high melting and boiling points. Yes or no? Yes मैम. So Yes, this is ma'am. done. Fine. Sn plus 4 has high polarizing power. Question number 62. Among LiCl, BeCl2, BCl3 and CCl4. See, covalent character will be more if charge on cation is more. +1, +2, +3, +4. So ionic character, covalent character will be maximum for Ma'am, CCl4, third then option. BCl3, BeCl2, LiCl. Understood? Yes, ma'am. After this, question number 63. The correct order of decreasing polarizable ions is. Polarizable ions are I minus more than Br minus more than Cl minus more than F minus. This. Fine. Any doubt? अरे बोलो. मैम 62 का एक बार दोबारा मैम थोड़ा दिखाएंगे वाला. हाँ.
62 में Li+1 होता है, Be+2 बनेगा, बोरोन +3 और कार्बन +4। मोर मैम चार्ज, इधर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या? मैम इधर LiCl का ज्यादा है BCl से, BCl2 से। हम सेकंड ऑप्शन में, हम थर्ड वाला होगा ना। अच्छा, एक सेकंड, सॉरी, ये फिर टाइपिंग एरर हो गया। अभी सही है? ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64, इसमें क्या होगा? नेसेसरी कंडीशन, हमें छोटा कैटायन चाहिए, बड़ा एनायन चाहिए। तो स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन। ओके, कोई डाउट? The correct order of increasing covalent character of the following: increasing covalent character, SiCl4, AlCl3, CaCl2, KCl. Obviously it is not increasing, it is increasing over here. +1, सेकंड। +2, +3, +4. आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 66, Ma'am, polarizability option. of ions is governed by Fajans rule. अभी तो पढ़ा है। Yes, ma'am. The correct order of decreasing polarity in the compounds. Now if I talk about polarity, that means decreasing ionic character. Yes or no? So Cs plus F minus, it will have maximum covalent character. Sorry, it will have maximum ionic character. Then KCl will have less, CaO, MgO. How can we check this? CSF KCl +1 charge, +1 charge, +2 charge, +2 charge. Now we are comparing the size of cations. Okay. Correct order of polarizing power is, question number 68. The correct answer is polarizing power first. चमक गया? Yes, ma'am. बत्ती जल गई दिमाग की? मैम 67 में जो डिक्रीजिंग पोलैरिटी है मैम, उसका मैम कौन सा बेसिस में होगा? आयोनिक डिक्रीजिंग कैरेक्टर। पोलैरिटी मतलब डिक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। मुझे याद दिला देना कि मैंने तुम्हें बॉर्न हेबर साइकिल भी पढ़ानी है वीबीटी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? दिला दोगे? सबसे पहले हम बात करते हैं कोवेलेंट दिला बॉन्ड देंगे, की। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल HCl गैस, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, भाई भाई। N2, O2, H2O एंड सो ऑन। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक बात आप समझो, रिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी रिवीजन कंप्लीट। इफ आई टॉक अबाउट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Na के पास एक फालतू था, Cl के पास एक कम था, तो Na ने बोला मैं प्लस ले लेता हूं, तुम माइनस ले लो और चले जाओ। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. इसके बाद अब बात आती है
टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब बात आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो जितने भी आए 7 मुझे भूख लगी है, तुम्हें भूख लगी है, मेरे पास 2 रोटी है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो मैं बोलूंगी कि ठीक है मेरी 2 रोटी लो और हम दोनों एक साथ में बैठ कर खाते हैं, हम दोनों शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरी तुमको दे दूं या पूरी अपने पास रख लूं। तो दिस इज नोन एज अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. अब बात आती है बॉर्न हेबर साइकिल की। बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल हमें ये बताती है कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड अगर बन रहा है, आयनिक कंपाउंड अगर बन रहा है, तो उसमें डायरेक्ट जो एनर्जी होगी इट इज सम ऑफ सो मेनी एनर्जीज। कैसे कि अगर मुझे बनाना है NaCl सॉलिड, क्या तुम्हें नेचर में डायरेक्टली सोडियम का आयन या डायरेक्टली क्लोराइड आयन मिलेगा कि तुमने उसको मिला दिया? नहीं मिलेगा। तो Na प्लस Cl माइनस, नॉट Cl माइनस, सॉरी, क्लोरीन गैस मिलती है। ठीक है। अब सोचो कि Na से Na हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, Cl2 गैसियस फॉर्म में मिलती है। अब मुझे चाहिए Na का Na प्लस चाहिए, तो Na प्लस में क्या मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डालकर डायरेक्टली बना सकती हूँ? अरे बोलो, क्या मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देकर क्या मैं सोडियम आयन बना सकती हूँ? क्या नहीं बना पाऊंगी? तो कैसे बनाऊंगी? क्या जैसे Na प्लस हो के चल जाएगा, Cl माइनस निकल अरे जाएगा। Na प्लस तो दे देगा, Cl माइनस भी दे देगा। क्या इसको डायरेक्टली हम बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी जो पता होती है वो गैसियस एटम के लिए पता होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें डेल्टा H सब्लिमेशन देनी पड़ेगी। डेल्टा H सब्लिमेशन, इससे बनेगा सोडियम गैसियस। फिर हमें देनी पड़ेगी इसमें आयनाइजेशन एनर्जी 1, जिससे बनेगा ये Na प्लस गैसियस। फिर आया Cl2, इसमें हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे हाफ मोल के लिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये बन जाएगा क्लोरीन गैसियस। और क्लोरीन गैसियस में हमने डेल्टा H Eg1 दी, तो फिर ये हो जाएगा Cl माइनस गैसियस। हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. अब इन दोनों में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एकदम प्यार मोहब्बत जाग जाता है कि ये एक हो जाते हैं और गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। आ गई बात समझ में? छाप लो। इतना हमें क्वेश्चन गिवन है और ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? थोड़ा फास्ट करो बच्चों, फिर उसके बाद छापो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि अब तो वही सिलसिला स्टार्ट होगा, बस ये और हो जाए। छाप लिया मैम। छाप लिया? ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं बनाना चाहूं MgO का, बना लूंगी, तुम भी बना लोगे, वो समझाने की जरूरत तो नहीं है।
नो मैम। और एक और बात, जो इसका टोटल डेल्टा एच होगा रिएक्शन का, डेल्टा आर एच, वो किसके बराबर होगा? डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ सोडियम इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो देखो क्या होगा, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ सोडियम प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन प्लस 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x डेल्टा एच ईजी 1 प्लस डेल्टा एच एल ई। स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आ गई बात समझ में? क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब बात आती है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की। लैटिस एनर्जी क्या होता है? प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। जब भी हमारे पास एक गैसियस कैटायन होता है, गैसियस एनायन होता है, तो उन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता है कि वो आपस में एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाते हैं, इतना चिपक जाते हैं कि लैटिस एनर्जी की वजह से वो गैसियस फॉर्म से सॉलिड में चले जाते हैं। तो मैं लिख देती हूँ, द एनर्जी released बताओ बच्चों, बात समझ आई? when अदिति बताओ क्या समझ आई? isolated gaseous, the energy released when isolated gaseous cation and anion, the energy released when isolated gaseous cation and anion x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर 3x क्यूब अपॉन x स्क्वायर combine अपॉन x स्क्वायर to form x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x the स्क्वायर। energy released or required. Most of the times it is released only. Combine to form ionic x की पावर 4 अपॉन solid. प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। छाप लो। ये दोनों तो कर देंगे, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये कितना होगा, x की पावर 2 प्लस 3x। भाई ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन करा इसमें कुछ नहीं है, बस x स्क्वायर से डिवाइड छाप लिया? इनको एक साथ अरेंज कर दिया। अरे बोलो, छाप लिया बच्चों? इस टाइम पे ये समझ आया? छाप लिया मैम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। अब देखो हमारे पास यहाँ से दो टर्म आई, Factors affecting अब इसके lattice क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। energy. If I talk about factors affecting lattice energy, then first factor is size of ions. See, if there are two thin people, मतलब पतले पतले लोग हैं, वो आराम से गले मिल सकते हैं, हाँ या ना? यस मैम। लेकिन अगर तो मोटे मोटे लोग हैं, यहाँ से हमें दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक तो x प्लस 1 अपॉन x और एक x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन। क्या वो आराम से गले मिल पाएंगे? तो उनकी लैटिस No, एनर्जी ma'am. जो रिलीज होगी वो कम हो जाएगी। तो साइज ऑफ आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अगर साइज ऑफ आयन कम है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, साइज ऑफ आयन ज्यादा हो गया तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर, चार्ज ऑन आयंस। आयंस पे कितना चार्ज होना चाहिए? ज्यादा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना कम चार्ज होगा उतना ही प्यार मोहब्बत कम होगा, हाँ या ना?
Yes, ma'am. plus Yes, ma'am. 42 कोई डाउट? plus 5 No. upon x square. No, ठीक ma'am. है. Charge on ions is directly proportional to lattice energy. 236 और 5 240 Any doubt? किसी को? और 190 छाप No, लो. ma'am. 241 upon 194. देखो ये Himanjani, can you hear me? ज्यादा है लेकिन है सारे स्टेप जितने भी स्टेप है ना वो सब इजी है x स्क्वायर से डिवाइड करा फिर Are you able to understand? समझ आया बच्चों Okay. So after this, अब ये लैटिस एनर्जी हो गई. लैटिस एनर्जी के बाद आती है हाइड्रेशन एनर्जी. देखो आप ना आपको यहाँ इस टाइप से कुछ बनाना पड़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि Na प्लस पानी में गया. Na प्लस गेट इनटू द वाटर. Now I am denoting H2O by this. This is oxygen, hydrogen, hydrogen. Water molecules will come near to this. तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर तो हमें ना इन्हीं में से Then this, क्यूब भी कर सकते they will get attracted like this, हमें इन this, तीनों में से किसी this, ऐसी टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा this, and so on. So can I say if size of cation will be less, it will be able to attract more water molecules or any other ion. If Cl minus is there, then it will have opposite hydrogen facing towards it. In case of Cl minus, it would be like this. पावर 3 से डिवाइड करते हैं तो करो x की पावर 3 से डिवाइड So can I say size of कितना बनेगा x प्लस 1 अपॉन x 3 cation सीक्वेंस बना more, कुछ भी सीक्वेंस less will be the hydration energy. डिवाइड करते हैं अगर हम इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करें तब क्या बनेगा x क्यूब प्लस 1 Yes or no? यहाँ से कुछ बना कुछ भी नहीं बना अगर हम इस पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर Tell Yes, me. ma'am. Yes, And ma'am. first point. देखो यहाँ से Second point. Can I say if charge will be more, it will be able to attract more layers of cation, more layers of water. Yes or no? Yes, ma'am. x की पावर So size of प्रॉपर सीक्वेंस बनती है cation, उसके बाद आपको ऑप्शन sorry, charge on cation. देखो आप एक बात समझो Charge on ऐसा कभी cation नहीं होगा कि इक्वेशन में आपके is पास दोनों फॉर्म more, then पावर 3 वाली फॉर्मेट more will be the hydration energy. देखो जब आप ऑप्शन देखोगे Energy due to more डिनोमिनेटर में हमारे attraction. चारों साइड चारों ऑप्शंस में 194 Third, 194 now if I have charge on cation which is more, more will be the hydration energy due to more attraction. And if I say that hydrated size, can you compare the size of one cation to a water molecule? Obviously water molecule will be bigger. Yes or no? Yes, ma'am. So can I say if see size of cation more and or charge of cation more layers? More layers means more water molecules. So can I say that size of cation, if it would be less, size of cation less, force of attraction would be more. This implies hydrated size will be more. Understood? यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस Understood, beta? Now, if I talk about order of hydrated size, Li plus, Na plus,
K plus, then Rb plus and Cs plus. The order of hydrated size, if I talk about aqueous, 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 the order will be reversed. अब इसको बताना किस टर्म से डिवाइड करें. It would be like this. Li plus will have higher hydrated size. If we go ideal. Fine. छाप लो. इक्वेशन को देखना और ये बताना हम किस टर्म से डिवाइड करें. बताओ किस टर्म से छाप लो बेटा. सोचो आराम से. कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है. बिल्कुल. अब की बार हम x से डिवाइड करेंगे क्योंकि x से डिवाइड करते ही हमारे पास एक पैटर्न फॉलो हो जाएगा x प्लस हो गया बेटा. बस हमें अपना एक पैटर्न ही तो बनाना है. समझ आया बच्चों? x से डिवाइड क्यों करेंगे? Yes, ma'am. ठीक है. अब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड तक कर चुके हैं. बैक बॉन्ड बचा है, वो हम बाद में करेंगे वीबीटी से ही पहले. अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. उसमें से देखते हैं तुम कितने कर पाते हो. ओके. अब ये पैटर्न बन गया और इस वैल्यू को Okay, ma'am. हम ओरिजिनल क्वेश्चन से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लग जाओ मेरे शेरों x से डिवाइड करेंगे तो काम पे. प्लस 1/x. क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट हो जाओ. अब ये पैटर्न बन गया और इस x प्लस 1/x की वैल्यू हम क्वेश्चन से फाइंड आउट कर सकते हैं. बताओ बच्चों, समझ आया? जिसको समझ नहीं आया बताओ बच्चों. ये ना क्वेश्चन देखकर ही क्या आपको क्वेश्चन देखकर समझ आ जाएगा क्योंकि ये जो टर्म है ना ये मतलब ऐसे ही गिवन होगा. या आप इनको देख करना एकदम समझ जाओ. अब यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ कितनी है. x प्लस 1/x की वैल्यू होगी बच्चों 10 और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? You are currently the only person in this conference. 97. a क्यूब माइनस 3a. लेकिन जो आपको कुछ टर्म्स लिखाई थी ना 3 4 5 6 7 भी नोट कर लेना. 7 और 10 इनको ना डायरेक्ट भी याद रखना. तो अब बस इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर तो आंसर आ जाएगा 970 अपॉन सॉरी 7. समझ आया बच्चों क्वेश्चन? अभी ना आपको लास्ट में अगर टाइम बचा तो ये क्वेश्चन कराऊंगा जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम में आया इसी के ऊपर बेसिस. लेकिन उससे पहले हम अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं. सॉल्व करो. देखो हमें ये क्वेश्चन की मैंने x रूट 3 माइनस x ब्रैकेट 3 माइनस 2 अपॉन x ब्रैकेट 1 इक्वल टू 3 अपॉन x और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. इतने बहुत टाइम बाद ध्यान दिया तुमने. समय थोड़ा भी ऐसे ही चल रहा है ना, अभी ध्यान कहीं और होगा. तुम लोगों का ध्यान तो कहीं और नहीं है. चल रहा है. चलो. तो देखो हेयर स्टाइल पे यूट्यूब पे वो लिखता होगा. तारीफ तो आप वहां भी कर सकते थे.
जुनेद आगे से इधर की नाव मुझे ये भी नहीं पता लाइट नहीं रिकॉर्डिंग काली नहीं होता कभी कभी आता है देखो लाइन में होगा कौन आप सबको यहाँ होगा इसलिए बात को लेक्चर लेंगे इसको बता इसका आंसर कितना होगा प्यार का महीना या फिर महीने भर का प्यार बताओ जब तो तुम्हारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया आज तो 16 तारीख हो गई 17/4 22/9 तनुश्री बेटा why are you late? 8/3 करो बच्चों ट्राई अब तो ये वही क्वेश्चन है अगर हमें x + 1/x डन आगे बढ़ा दूं दीपक हमें फाइंड आउट करना है x² + 1/x Yes, ma'am. इसका मतलब अगर हमें x + 1/x मिल जाए हम उसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे या फिर अगर हमें x - 1/x मिल जाए हम उसका स्क्वायर करके +2 कर देंगे तो हमें इन दोनों में से किसी एक कंडीशन की जरूरत होगी करो ट्राई बताओ कैसे बनाओगे बताओ बच्चों कैसे बनाओगे देखो आपको कुछ भी नहीं करना क्योंकि आपको कुछ आता भी नहीं है देखो आप क्या करो 3x - 2 हमने x की मल्टीप्लाई कर दी 3x - 2 = 3/x अब इस 3/x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये कितना होगा 3x - 3/x = 2 अब यहाँ से हमने 3 को ले लिया बच्चों कॉमन तो ये कितना होगा x - 1/x = 2 और x - 1/x की वैल्यू कितना होगी 2/3 x - 1/x की वैल्यू है 2/3 x² + 1/x² फाइंड आउट करना है कैसे करोगे अब ये तो हमें क्वेश्चन गिवन है कंप्लीट हमने x की मल्टीप्लाई करी फिर 3 वाले टर्म को हमने एक साथ करके उसमें से 3 को कॉमन ले लिया ऊपर हो नहीं सकता तो फिर हमारे पास अकेला बच गया ना हम x से डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे देखो अगर x - 1/x है हमारे पास 1 तो x² + 1/x² कितना होगा मान से हाँ बिल्कुल देखो अगर x - 1/x की वैल्यू है 2/3 हमें फाइंड आउट करना है x² + 1/x²। Ma'am, next question. चलो दीपक की आवाज तो आई इस बहाने करो जल्दी से सॉल्व 2/3² + 2 बस इसमें क्या था जो आपके इतने सारे आंसर्स हैं 4/9 + 0 तो ये कितना होगा 22/9
आंसर होगा बच्चों 22/9। बताओ बात समझ आई? डिजिट सम कहां से आया इसमें? डिजिट सम को रीड किया था आप सबने? देखो उसको अप्लाई आप कहीं भी नहीं कर सकते। 3, 6 और 9 इनमें हम कभी डिनोमिनेटर को 1 नहीं कर सकते। तो इसके लिए पहले हमें डिजिट को अलग-अलग 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इसकी कोई नीड नहीं है। डिजिट सम का यूज होगा अरिथमेटिक। क्योंकि एडवांस मैथ कभी कैलकुलेट नहीं होती। बहुत रेयर कंडीशन है कि एडवांस मैथ कैलकुलेट आए। एडवांस मैथ बस समझने वाला पार्ट। अब इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे? 3a + 1/5a = 6 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 25a² + 1/9a²। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? बच्चों आपके पास ये जो पीडीएफ है क्लास को हर बार होता है क्लास में आने से पहले एक बार मैं इसको देख कर आया था। सिंपलीफिकेशन से भी कैसे सॉल्व करोगे? सिंपलीफिकेशन के लिए नहीं उसको हम कंप्लीट अर्थ हो गया? यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है ओनली सिंपलीफिकेशन के लिए। हो गया क्या बेटा? अभी जब उसको डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। कंप्लीट अरिथमेटिक में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां आपको लगता है, लेकिन यहाँ यूज करेंगे। अभी पहले इसको सॉल्व किया, मैंने सोचा ये बोल दिया कि इस क्वेश्चन को सिंपलीफिकेशन से सॉल्व करेंगे। अनमोल बताओ कैसे सॉल्व करें? देखो अब ना क्या करो, देखो हमें गिवन है 3a + 1/5a। ये तो हमें गिवन है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है 25a²। 25 इसका मतलब अगर हमारे पास 5a + 1/3a बन जाए, अभी बनाएंगे इसको हम बाद में। अगर हमारे पास 5a + 1/3a बन जाए और उसका हम स्क्वायर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 25a² + 9a²। अब इसका मतलब ओरिजिनल इक्वेशन में हमें यहाँ बनाना है 5 और यहाँ बनाना है 3। तो हम कैसे बनाएंगे वो सोचो। देखो हमें क्या करना है बच्चों, हमने इस कंप्लीट इक्वेशन में 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखो हमें यहाँ ना 5 की नीड है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करिए और 3 को हटाना है, इसलिए 3 से डिवाइड करिए। 5 की नीड है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करिए, 3 को हटाना है, इसलिए 3 से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई। अब ये सेम मल्टीप्लाई होगी 5/3
और सेम मल्टीप्लाई होगी 5 ऑप्शन में। तो देखो हमारे पास कितना होगा 5a प्लस 1/3a इक्वल्स टू 10। बताओ बच्चों, बात समझ आइए। हमें 5/3 से मल्टीप्लाई क्यों करें? क्योंकि हमें 5 की नीड है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करें। और हमें 3 को सॉल्व किया, हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो कुल मिला के हमने क्या करा 5/3 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ। ओके बेटा सॉल्व हो रहे हैं। इसमें हो रहा है कुछ कुछ में डाल के, कुछ कुछ हो रहे हैं, ठीक है। बाकी तो मैं बता ही कुछ कुछ दूंगी, में डाल के। कोई बात नहीं, Yes, डिस्कस ma'am. कर लेंगे। एक को नहीं करना, बस 3 को करना। कंप्लीट तो करो। ये दोनों करते हैं। एटलीस्ट इनऑर्गेनिक का तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर लिया करो। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन आ गया बच्चों, फिर से समझ लो। 5 की हमें नीड है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करी। 3 को हटाना है, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। तो कुल मिला के हमने क्या करा 5/3 से मल्टीप्लाई। अब देखो क्वेश्चन आया हमारे पास 5a + 1/3a = 10 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 25a² + 1/9a। बताओ कैसे करोगे? अब आप ना बस मुझे इतना बताओ, इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं? आप ये बताओ इस क्वेश्चन को किस टाइप से कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लो, फिर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करना। वो बात ठीक है, लेकिन आप ये भी बता दो एक छोटी सी बात, इसको हम किस टाइप से कर सकते हैं या फिर नहीं, क्यों नहीं कर सकते? यस बताओ। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा ये भी। बताओ बच्चों, इसको इस टाइप से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास ना वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए देखो यहाँ हमारे पास वेरिएबल है 1 तो 1, ये दोनों वेरिएबल सेम है और ये दोनों वेरिएबल भी सेम है, इसलिए इसको यहाँ हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ हमारे पास वेरिएबल सेम नहीं है, 5 और 3 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। हो गया, डिस्कस करें। सेम नहीं है, देखो x कितने भी सारे हो कभी सेम हो भी नहीं सकते। अब आप क्या करेंगे? चलो क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट आंसर विल बी, तो ये कितना होगा 25a² + 1/3 22 3। कोई डाउट? No, ma'am. क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट आंसर इज, एलिमेंट है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एलिमेंट है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या मैं बोल सकती हूँ ये पक्का मेटल होगा और ये नॉन मेटल होगा? मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसे टाइप का बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड, हाँ या ना? तो Yes, आयनिक ma'am. बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड नॉन डायरेक्शनल नेचर। हो जाएगा। Yes, ma'am. फिर क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट आंसर इज 2। An ionic bond A+ and B- is most likely to be formed when the ionization A+ और B- कब बनेंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा और ये ले लेगा। तो ionization energy of A is low and electron gain enthalpy of B is high। समझ में आ गई बात? ज्यादा इलेक्ट्रॉन Yes, गेन ma'am. एंथैल्पी होगी। क्वेश्चन नंबर 25, 23 एक बार फिर से समझा देंगे। 23 में देखो, अगर एक के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये पक्का मेटल होगा, ये नॉन मेटल होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो मेटल और नॉन मेटल में कैसा बॉन्ड बनता है? मेटल में मेटेलिक बॉन्ड, अरे चिरकुट मेटल और बालक, नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल और तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के मेटल के बीच में। बीच में। हाँ,
मैम आयनिक बॉन्ड, यस मैम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉन डायरेक्शनल नेचर, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, लैटिस एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी? हमें क्या चाहिए? चार्ज ज्यादा, साइज कम। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये MgO की होगी? हाँ या ना? यस मैम, यस मैम। यस मैम, क्वेश्चन नंबर 26, कैसे सॉल्व करोगे? 26 का हो जाएगा 2। Atoms combine so that they can attain stable configuration if possible to that of nearest noble gas. अगर हम नोबल गैस करेंगे तो फिर वो एक्सेप्शंस आ जाएंगे, हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x क्यूब। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि नियरेस्ट नोबल गैस के आसपास की आ जाए इफ पॉसिबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, लेकिन इनमें जो सोचना थोड़ा ज्यादा पड़ता है। 27, a bond formed between two like atoms cannot be, two like atoms means एक जैसे एटम के बीच में कैसा बॉन्ड नहीं बन सकता है? देखो मेटल और मेटल के बीच में बन सकता है मेटेलिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुमने देखा ही है, ऑक्सीजन Ionic ऑक्सीजन bond. ऑक्सीजन में हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में N2O2 बहुत सारे हैं। क्या तुमने देखा है कि सेम एटम इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और ले भी रहा है? नहीं। तो आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स, मेटल नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 28, अगर हमारे पास आंसर क्या होगा? तो हम बी फर्स्ट वाला को ए नोट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला, First, element X is strongly electropositive and Y is strongly electronegative. Both are univalent. The compound formed will be X plus Y minus. ठीक है, अगर ये आयनिक कंपाउंड ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, an electron valent bond or ionic bond is formed between, दो मेटल में तो नहीं बनता, 4. electropositive and electronegative atoms, basically metal and non-metal. Question number 30, x minus 3 सेकंड में, 1 upon x। अब इस 30 का हो जाएगा, फर्स्ट, माइनस 3 को राइट देख Second. लेते हैं। Ionic compounds in general possess both high melting and boiling point होता है, non directional bonds होता है, ये तो सही है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होता, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। ठीक हाई है, बॉइलिंग पॉइंट। मैम मैं 31 पे बोल दिया गलती से। अरे चिरकुट वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? फटाफट से बोलो। 31 कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज, वो भी हमने कंडीशन क्या होती है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए? स्मॉल केटायन लार्ज एनायन? नहीं, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए होती है, फजान्स रूल। लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ केटायन एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयन, बिल्कुल, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खुश होगा और इलेक्ट्रॉन देने के लिए खुश होगा। लार्ज केटायन एंड स्मॉल एनायन एंड लेस चार्ज, बिल्कुल, क्योंकि ये इट इज ऑपोजिट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। और हमें लैटिस एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा ही चाहिए होती है, तभी तो वो एक प्रॉपर लैटिस बन पाएगा। तो आंसर विल बी 2 and 3। आ गई बात समझ में? यस मैम, यस इसके मैम। बाद क्वेश्चन नंबर 32, द करेक्ट आंसर इज थर्ड वाला, कंपाउंड विद मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इज फॉर्म्ड बाय। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर कब होगा? जब कैटायन का साइज बड़ा होगा और एनायन का साइज छोटा होगा। तो सीजियम एंड फ्लोराइड। यस क्वेश्चन नंबर 33, इसीलिए इसको बाकी करते उसको मतलब 33 का आंसर क्या होगा?
बताओ बच्चों, समझ आया? An atom of element A has 3 electrons in its outermost shell, while one of the element X has 6 electrons in its outermost shell. तुम इसको मान लो कि अब देखो A plus 3 बना सकता है, X minus 2 बना सकता है. 6 इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन की तरह, तो ये हो जाएगा क्रिस क्रॉस, तो ये बन जाएगा A2X3. आ गई बात समझ में? तो बस यही सब Yes, ma'am. Which of the following statements about LiCl and NaCl is wrong? LiCl, इसका आंसर क्या होगा? LiCl has lower melting point than that of NaCl. ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर है. LiCl dissolves more in organic solvent whereas NaCl does not. बिल्कुल, क्योंकि LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर है और NaCl में आयनिक कैरेक्टर है. LiCl would ionize in water more than NaCl. बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट कैरेक्टर है. Fused LiCl would be less conducting than fused NaCl. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो. Yes, ma'am. ठीक है. 35. Compound of a metal M is M2O3. The formula of its nitride will be. आपको एग्जाम में बस इतना टाइम मैनेजमेंट करना है. M2O3 है, इसका मतलब ये M3 प्लस और O2 माइनस से बना है. तो क्या मैं बोल सकती हूँ M3 प्लस N3 माइनस, तो ये Mn ही बना लेगा. अकेले मैथ को आपको बहुत आराम से प्यार से कंप्लीट करना जैसे AlN बनता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड. है. आपको हाँ या ना? आपको सॉल्व करना है. 32 मिनट में 20 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 36. आंसर क्या होगा? और मैं इंग्लिश और हिंदी First one. तीनों को आप 20 फर्स्ट वाला. कर सकते हो. अगर आप एग्जाम देते किसी को डाउट? एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट No, ma'am. compounds generally possess high melting and boiling point. बताओ सर. In which of the following Ki has highest solubility? See, if I talk about okay, I have not taught you dielectric constant. ये मैं एक बार ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद पढ़ाऊंगी. ठीक है? एग्जाम में टाइम कम है. Okay, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट बताओ. तो अगर फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस मैथ देखो. solid NaCl is a bad conductor of electricity because in solid NaCl there are no ions. In solid NaCl there are no mobility of ions. Solid NaCl is covalent. Solid NaCl, in solid NaCl there are no electrons. कौन सा आंसर सही होगा? देखो आयंस तो होते ही हैं, कोवेलेंट ये नहीं होता है, मोबिलिटी ऑफ आयंस नहीं होता है. सही है. और इन सॉलिड NaCl देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स. बिल्कुल होते हैं. इसका मैं आंसर तो तुमको बता ही देती हूँ. इन विच ऑफ द फॉलोइंग Ki हैज हाईएस्ट सॉलिबिलिटी? इसका आंसर होगा इसके बाद नंबर सिस्टम होगा. वैसे तुमको बता देती हूँ, डायरेक्टली ही बता देती हूँ. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोर, सॉल्युबिलिटी एक मेथड आपके पास ये होगा. मोर, बेसिकली पोलराइजेबिलिटी मोर. एक मेथड आपके पास ये है कि आप ना क्या करो, किसी भी दिन ठीक है. क्वेश्चन नंबर नहीं, पोलराइजेबिलिटी मत लिखो, इससे तुम कंफ्यूज होगे. सॉल्युबिलिटी पे ही लिखो. अगर आप ऐसा करें आयनाइजेशन मोर. तो फिर वो 300 क्वेश्चन आपको बहुत इजीली कर सकते हैं. जब आपका ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38 हो गया. 39 का आंसर क्या होगा? तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप दो 39 का आंसर क्या होगा? अरे बोलो. सेम ऐसे दो आयनिक रिएक्शंस occur in. और फिर मैं आपको 300
वरना जो कुछ बच्चे हैं जो स्टार्टिंग एक्वस सॉल्यूशन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑफ हाई पोलैरिटी, बिल्कुल सही बात है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में या फिर लो पोलैरिटी में आयनिक रिएक्शंस नहीं होती क्योंकि डिसोसिएशन नहीं हो पाता। गैसीय स्टेट में नहीं होती, सॉलिड स्टेट में नहीं होती, लिक्विड या मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्वस स्टेट में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 40, आंसर क्या होगा? प्रीतम जल्दी बता बेटा। 40 का? हाँ, 40 में नहीं है। electrovalent compounds or ionic compounds do not show stereoisomerism. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कभी भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि उनका नेचर डायरेक्शनल नहीं होता है। अगर मैं बोल रही हूँ ये Na सोडियम है तो क्लोरीन यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जस्ट लाइक हाँ, बस इतना ही। तो यहाँ पे ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि इस बॉन्ड का नेचर नॉन डायरेक्शनल है। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, कोई ma'am. डाउट? मैम 24 वाला क्वेश्चन एक बार थोड़ा याद है। 24. An ionic bond A plus B minus is most likely to be formed when? अच्छा, A plus और B minus बनने के लिए ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है। इस आयनिक बॉन्ड में A अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और B अपना एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर ये खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन देगा और वो इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी लेगा, तभी तो ये बॉन्ड बनेगा। मान Yes, लो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते हुए अगर मैं बहुत खुशी खुशी तुमको पढ़ा रही हूँ और तुम खुशी खुशी मुझसे पढ़ना चाह रहे हो, तभी तो पढ़ाई हो पाएगी। अगर मैं तुम्हें खुशी से नहीं पढ़ाऊंगी तो भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तुम खुशी से पढ़ना ही नहीं चाहोगे तब भी पढ़ाई नहीं होगी। तो इट इज बोथ वे राउंड, हाँ या ना? इसलिए आयनिक बॉन्ड भी Yes, तभी ma'am. बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन देता है खुशी खुशी और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है खुशी खुशी। लेता है। और कोई डाउट? No, ma'am. नो? लॉक कर दिया जाए? तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करें? Yes, ma'am. चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Thank Bye, you, ma'am. ma'am. ओके Thank you, बेटा, ma'am. बाय बाय। Bye, हैप्पी ma'am. बसंत पंचमी। Same to you, ma'am. पतंग कितने बच्चे उड़ाएंगे? पतंग तो उड़ाते नहीं हम। पतंग नहीं उड़ाते, येलो कपड़े पहनते हैं। येलो हम खाली नहीं पूजा पहनते। करते हैं ना। अच्छा, पूजा करते हैं विद्या की। तुम भी अच्छे से पूजा करना अपनी बुक्स की। और ऐसा नहीं है कि उनको बस मंदिर में सजा के और अब आज तो पूजा करनी है, अब हम पढ़ नहीं सकते हैं तो आज हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसा मत करना। Okay, ma'am. प्रीतम तो पक्का ऐसा करने की सोच रहा हो, हाँ। नहीं? चलो ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बेटा। You are now muted. एंड मूवमेंट को बस तुम्ही को करना है, उनको
You are currently the only person in this conference.